Welcome students. Today I am going to start with microeconomics. As we all know, in 11th class for economics, basically we have two books. First is statistics and second is microeconomics. Today I am going to start with microeconomics. In this I am going to teach you some basic concepts about microeconomics. Before understanding microeconomics, what is microeconomics, we have to understand what is economics. So basically, economics is the study of scarcity of resources and problem of choice. So it is study of scarcity of resources and problem of choice. Basically, in any economy, the resources of the country are very scarce. Why resources are scarce? Because we have unlimited wants. अगर हमारी जो wants हैं वो अनलिमिटेड होंगी तो हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है जो हमारी सारी वांट्स को फुलफिल कर सके. दैट इज़ वाई वी हैव स्कैर्स रिसोर्सेज एंड ड्यू टू दैट वी हैव प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. दैट मीन्स बिकॉज दीज स्कैर्स रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, सो वी हैव टू पुट दीज रिसोर्सेज टू देयर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव यूजेस so that the consumer can maximize its satisfaction, the producer can maximize their profit, and the society can maximize its social welfare. So basically, what is economics? Economics is the study of scarcity of resources and problem of choice. Problem of choice deals with the allocation of scarce resources. So what is problem of choice? It is allocation of scarce resources so that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit, and society can maximize its social welfare. बेसिकली जो इकोनॉमिक्स होती है वो आपकी दो टाइप की होती है. एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स. So what is the difference between the two? This is our next topic. So next topic है what is the difference between microeconomics and macroeconomics. See, microeconomics, micro basically means small. So it is studies the economic activities or economic problems at the individual level. Individual level पे जो भी economic problems हैं उनको study करता है. जैसे कि for example individual firms, individual consumer, individual household. So it studies the economic problem at the individual level and it assumes that macroeconomic variables remains constant. That means जितने भी macro variables हैं वो constant है, वो बिल्कुल भी change नहीं हो रहे हैं. तो ये microeconomics है. What is macroeconomics? Macroeconomics, it studies the economic problem at the level of economic as a whole. That means economy as a whole at the level of country जब study की जाती है economic problems को, economic problem is nothing but the problem of choice. Okay? तो जब हम पूरे इकॉनमी की जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, उसको हम पूरे इकॉनमी के लेवल पे हम उसको जब स्टडी करते हैं, दैट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक्स. फॉर एग्जांपल जनरल प्राइस लेवल.
अगर हम इंडिविजुअल प्राइस की बात करेंगे किसी इंडिविजुअल कमोडिटी की, दैट इज़ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम बात करेंगे जनरल प्राइस लेवल, दैट मीन्स द प्राइस ऑफ द ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकॉनमी, तो वो होता है हमारा जनरल प्राइस लेवल। तो वो क्या है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। एग्रीगेट डिमांड, इंडिविजुअल कंज्यूमर की जो डिमांड है दैट इज़ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट व्हेन वी आर कंबाइनिंग ऑल द कंज्यूमर्स डिमांड टुगेदर वी विल गेट एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। नेशनल इनकम, अगर हम इंडिविजुअल इनकम की बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। And in macroeconomics, it assumes that the micro variables remains constant. That means that microeconomic variables are not changing when we are studying about the macroeconomics. So, this is the difference between the microeconomics and macroeconomics. Our next topic is positive and normative economics. So, what is the difference between positive and normative economics? Our next topic is difference between positive and normative economics. Positive economics क्या कौन सी इकोनॉमिक्स होती है? It is a type of economics that deals with economic issues that are related to past, present and future. अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, जैसे कि अगर हम बोलेंगे इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम थी, लेट्स से आफ्टर इंडिपेंडेंस द 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अनएम्प्लॉयड। देन व्हाट इज़ द कंडीशन नाउ? अभी जो कंडीशन है अनएम्प्लॉयमेंट की, दैट लेट्स से 20% ऑफ द पीपल इन द कंट्री आर अनएम्प्लॉयड, दैट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन। And what is the future situation? Future situation that government bringing so many programs and policies for reducing the unemployment problem in the economy. So in the near future, the problem of unemployment in the economy can be solved through the various programs and policies that are taken by the government. So पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स है वो डील करती है ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज से जो कि हमारे इकोनॉमी के जो पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनकी क्या कंडीशन रहेगी और उनका क्या स्टेटस रहेगा, दैट वी स्टडी इन द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इसमें जो स्टेटमेंट है दैट आर नॉट नेसेसरीली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, दैट मीन्स दीज मे बी ट्रू और फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट हैं ये ट्रू और फॉल्स दोनों ही हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम बात करें पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटर देन चाइना, तो ये एक स्टेटमेंट है। एज वी ऑल नो दैट नो, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, रैदर द चाइना's population is greater than the population of India. So that is the false statement. तो ऐसे स्टेटमेंट को, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो स्टेटमेंट हैं वो ज़रूरी नहीं है वो सारे स्टेटमेंट ट्रू हो, वो स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकते हैं और हम उनको ऐसे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वी कैन वेरीफाई दैट फैक्ट्स एंड फिगर्स फॉर ट्रूथ। क्या वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में दिए गए हैं क्या वो सही हैं या फिर वो नहीं हैं। उसी तरह से यहाँ पर कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं है। इट ओनली डील्स अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स कैन बी ईजिली वेरीफाइबल। Then what is normative economics? Normative economics is an economics that deals with the opinion of the economics related to economic issues or economic problem. So basically it deals with the opinions. यहाँ पर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, यहाँ पर हम ओपिनियंस की बात कर रहे हैं। और किसके ओपिनियंस की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिक्स related to the economic issues or economic problems. The statement of normative economics relate to what ought to be. That means क्या होना चाहिए। जैसे कि these are the topics or these are the statement of debates. जैसे कि for example old age pension होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। In this statement that old age pension should be scrapped or old age pension should be abolished,
इस टाइप का जो स्टेटमेंट है इनमें ओपिनियंस की बात होती है जो कि डिबेटेबल टॉपिक्स हैं, जैसे कि क्या ओल्ड एज पेंशन होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर नहीं तो उसके क्या क्या डीमेरिट्स हैं जिसकी वजह से ओल्ड एज पेंशन को स्क्रैप कर देना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी इज द स्टडी ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। The statement cannot be termed as true or false because in these statements it involves the opinions. इन इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं उनमें ओपिनियंस होते हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं ये सही है या गलत है। येस, दीज टॉपिक्स आर डिबेटेबल। यहाँ पर आप ओपिनियंस की बात करते हैं। इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स द स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफाइबल because these statements are not verifiable, because in this we are study about the opinions of the economics related to various economic issues. That is why these statements are not verifiable. These statements does not study about the facts and figures, but these statements are related to the opinions of the economics. In normative economics it involves the value judgment. So this topic is over now. Our next topic is what is economy. Economy क्या होती है? Economy is a system by which people of an area earn their living. That means किसी भी कंट्री में जहाँ पर जो लोग हैं वो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द production, distribution, consumption, investment. These are the production activities. When a person doing economic activities and they are earning from that area is known as economy. So our next topic is central problems of an economy. Before we understand what are the central problems of an economy, we have to understand what is economic problem. Economic problem is nothing but the problem of choice. Why there is problem of choice? Because we have unlimited wants, but there is limited resources, or there is problem of scarcity of resources. Resources are very limited, and these limited resources have alternative uses. That means हमारी इकॉनमी में या फिर किसी भी इकॉनमी में जो वांट्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड होती हैं, और जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। एंड बिकॉज दीज लिमिटेड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, सो वी हैव टू चूज बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स सो दैट वी कुड मैक्सिमाइज आवर इकोनॉमिक गेन्स। हमको अपना इकोनॉमिक गेन्स को मैक्सिमाइज करना है, इसीलिए हमको जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हमको बहुत ही ऑप्टिमली इनको यूज़ करना होगा रिसोर्सेज को। सो वी हैव टू यूज़ दीज रिसोर्सेज वेरी केयरफुली सो दैट वी कैन फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स एंड वी कुड मैक्सिमाइज आवर इकोनॉमिक गेन्स। सो दीज आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बेसिकली किसी भी इकॉनमी में 3 डिफरेंट सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। सो central problems in an economy are of 3 types. First है what to produce and in what quantity. Second is how to produce. And third central problem है for whom to produce. First, I am going to discuss with the first central problem of an economy, that is what to produce and in what quantity.
सो बेसिकली बिकॉज इकॉनमी में जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्केर्स हैं और उन स्केर्स रिसोर्सेज के बहुत ही अल्टरनेटिव यूजेस हैं। दैट मीन्स हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल हम इन रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज़ करें कि हमारा जो इकोनॉमिक गेन है वो मैक्सिमाइज़ हो सके। हम जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम रिसोर्स के लिए एक एग्जांपल ले लें, लैंड ले सकते हैं। लैंड को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड वी कुड यूज़ दिस लैंड फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री। अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, तो इस लैंड को हमको किस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए। क्या हमको सारा लैंड जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए, या फिर सारा लैंड जो है हमको इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए करना चाहिए, या फिर हमको इस लैंड को इस तरह से डिवाइड करना चाहिए कि हमारा जो इकोनॉमिक गेन है वो हमारा मैक्सिमाइज हो सके और जो इकॉनमी में जो लॉस है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। सो बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस, हमको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। तो बेसिकली हमारी इकॉनमी में दो टाइप के गुड्स होते हैं। फर्स्ट इज कंज्यूमर गुड एंड सेकेंड इज कैपिटल गुड्स। डिफरेंस क्या है कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड में? कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स विच आर यूज फॉर डे टू डे पर्पस, फॉर एग्जाम्पल sugar, then cloth, food grain, etc. So these are the consumer goods. Capital goods, these are the goods which are used for further production. For example, machines, tractors, etc. So these are the goods which are used for further production and that lead to future growth. तो बेसिकली इकॉनमी में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ये है कि क्या हमको कंज्यूमर गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करने चाहिए या फिर हमको कैपिटल गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करने चाहिए। तो अगर हम कंज्यूमर गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमको अपने जो रिसोर्सेज हैं इसमें जो कैपिटल गुड है उसके लिए कम यूटिलाइज करने होंगे, बिकॉज रिसोर्सेज कम हैं। अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम सेकेंड जो ऑल्टरनेटिव यूज़ है उसका उसमें कम कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमको जो अपनी फ्यूचर ग्रोथ है, अगर हम कैपिटल गुड को कम प्रोड्यूस करते हैं और हम ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो कंज्यूमर गुड में लगा देते हैं, दैट मीन्स जो हमारी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो अफेक्ट होगी, फ्यूचर ग्रोथ विल डिक्रीज। लेकिन अगर हम ज़्यादातर चीज़ें हैं वो हम कैपिटल गुड में लगा देते हैं तो हमारी इकॉनमी में सभी जो सेक्शन हैं वो उतनी ज़्यादा वेल ऑफ नहीं हैं और हमारी इकॉनमी में फूड ग्रेन की प्रॉब्लम आ सकती हैं, जिसकी वजह से हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा और हमारे फॉरेन एक्सचेंज हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। सो बेसिकली क्या है कि ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स एंड इन व्हाट क्वांटिटी। पहले हमको ये डिसाइड करना है कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या हमको ज़्यादा कंज्यूमर गुड करना है या कैपिटल गुड करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। अगर हम ज़्यादा ये प्रोड्यूस करेंगे तो हम कैपिटल गुड को कम प्रोड्यूस कर पाएंगे और अगर हम कैपिटल गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हम कंज्यूमर गुड कम प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी, दैट इज़ what to produce and in what quantity. Next जो हमारी जो प्रॉब्लम है that is how to produce. Basically जो how to produce central प्रॉब्लम है इकॉनमी की, it deals with the technique of production. That means we have to produce goods and services in a very efficient way. That means more production at less cost. So technique of production क्या होनी चाहिए? More production at less cost. Basically जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो दो टाइप की हैं। फर्स्ट है लेबर इंटेंसिव
टेक्निक और सेकंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. What is the difference between the two? In labor intensive technique we are using more labor as compared to capital. That means we are using more labor than capital, and in capital intensive technique we are using more capital than labor. That means we are using more machines in the production process, and in the labor intensive technique we are using more labor in the production process. So basically जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है इसकी वजह से क्या होता है, इट रिड्यूसेस द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी, बिकॉज इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक व्हाट वी आर यूजिंग more labor we are using. That means it lead to higher employment, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, दैट वुड लीड टू डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. लेकिन जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, इन दिस वी आर यूजिंग मोर मशीनरी देन द लेबर. दैट मीन्स इन दिस देर इज हायर एफिशिएंसी. That means we are producing more goods at lesser cost, because obviously जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही, जो मशीन है वो फास्टर होगी लेबर से, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी और वो बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी. दैट मीन्स मोर प्रोडक्शन एट लेस कॉस्ट. लेकिन इससे क्या होता है, अगर हमने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ करी तो इट लीड टू प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज हम मशीन्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. तो बेसिकली होता क्या है, जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ होती हैं लाइक इंडिया, वी यूज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर देन द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. बट जो जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, दे आर यूजिंग मोर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस देन द लेबर इंटेंसिव टेक्निक. नेक्स्ट जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है हमारी फॉर whom to produce. Whom to produce? Because of scarce resources, goods cannot be produced for all sections of the society to the extent desired. That means हमारी सोसाइटी में बेसिकली दो सेक्शंस रहते हैं, जैसे कि पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सो हमारी सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही स्केर्स हैं, जिसकी वजह से हम जितना प्रोडक्शन हमको करना चाहिए हम उतना नहीं कर सकते हैं. दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. अगर हम अपने रिसोर्सेज का ज़्यादातर यूज़ हम पुअर सेक्शन के जो लोग हैं उनके लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं, तो इसकी वजह से हमारी इकॉनमी में जो सोशल जस्टिस है वो प्रमोट होगा. सोशल जस्टिस विल बी प्रमोटेड. इट लीड टू डिक्रीज इन इनइक्वालिटी. हमारी कंट्री में जो इनइक्वालिटी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी. बट if we are producing more goods for the poor section of the society, it lead to a hidden cost, because when we are producing more for the poor section, the producer's profit will be lower. Why? Because जो poor section है हमारी सोसाइटी के वो ज़्यादा पैसा देना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. So जितने भी जो प्रोड्यूसर हैं they have to sell their product at less price. That means अगर वो लेस प्राइस में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करेंगे, इसका मतलब ये है जो प्रोड्यूसर हैं उनका जो प्रॉफिट है, दैट मीन्स द प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर प्रॉफिट विल बी लोअर फॉर द प्रोड्यूसर. अगर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट ही लोअर होगा, दैट लीड टू
डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब भाई जब जो प्रोड्यूसर है उसको प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लेकिन जब उसका प्रॉफिट ही कम है तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करेगा, और अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होगा इकोनॉमी में, दैट लीड टू लो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट मीन्स लो जीडीपी इन द इकोनॉमी। और अगर इकोनॉमी में जीडीपी लो होगा, दैट लीड टू बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज़ अ प्रॉब्लम, कि हमको हमारी कंट्री में कौन से सेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर हम पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करते हैं तो सोशल जस्टिस तो प्रमोट होगा, इनइक्वालिटी भी रिड्यूस होगी, लेकिन जो प्रॉब्लम है बैकवर्डनेस की हमारी कंट्री में वो बनी रहेगी। तो इसीलिए देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन द सोशल जस्टिस एंड द जीडीपी ग्रोथ। So these are the three problems of an economy, that is what to produce, how to produce and for whom to produce. Our next topic in this chapter is concept of opportunity cost. What is opportunity cost? We have to understand first. What is opportunity cost? Opportunity cost is the next best alternative foregone. एज़ वी ऑल नो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, लेकिन हमको एक जो हमारी जो बेस्ट चॉइस है वो हमको सिलेक्ट करनी होती है। लेकिन जब हम अपनी बेस्ट जो चॉइस है उसको सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके अलावा भी जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, जो सेकंड बेस्ट चॉइस है, वो हमको छोड़नी होती है, एंड दैट इज़ नथिंग बट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। So basically it is the benefit lost when one alternative is selected over the another. For example, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझें, लेट्स से आपके पास जॉब्स के ऑफर्स हैं, आपके पास 3 जॉब हैं, जॉब ए, जॉब बी एंड जॉब सी। जब आपने इंटरव्यू दिया तो आपके पास जब कॉल आया जॉब के लिए, जॉब का जो ऑफ़र आया आपके पास, उसमें जॉब 1 जो थी, जॉब ए जो है, उसमें आपको 50,000 पर मंथ की सैलरी दी जा रही थी। जॉब बी जो है उसमें आपको 50,000 सैलरी ऑफ़र हुई, और जो जॉब सी है उसमें आपको 45,000 सैलरी ऑफ़र हुई। सो बेसिकली जब आपके पास 3 जॉब्स की चॉइस है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप बेसिकली अगर आप अपना बेस्ट ऑल्टरनेटिव सोचेंगे तो आपको जॉब बी आप सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज आपको जॉब बी में 55,000 पर मंथ की सैलरी दी जा रही है। दैट मीन्स यू विल चूज जॉब बी ओवर जॉब ए एंड सी। लेकिन जब आपने जॉब बी को सिलेक्ट किया तो इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दैट मीन्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था यहाँ पर? जॉब ए। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सिलेक्टिंग जॉब बी इज़ 50,000 रुपीज़, बिकॉज आपने जो अपना बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, आपकी जो बेस्ट चॉइस है, आपने चूज़ किया 55,000, लेकिन उसके बदले आपको जो अपनी नेक्स्ट बेस्ट चॉइस थी वो आपको छोड़नी पड़ी। जो उसका जो बेनिफिट है जो आपको मिल सकता था वो आपको छोड़ना पड़ा, और वो कितना था? वो था 50,000। सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ. I will meet you in the next class with the new topic. Till then, goodbye and take care.